ببلو ایک بہت ہی ضدی بچہ تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہر چیز سے انکار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اسے ماں باپ کا اکلوتا ہونے کا بہت گھمنڈ تھا۔ پیسوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ ماں باپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ کوئی بات نہیں مانتا تھا اور اپنی ہی کرتا تھا۔ بیٹا چلو کھانا کھا لو، پھر پڑھائی بھی کرنی ہے، بہت سو لیا، اب اٹھ جاؤ، نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ امی مجھے سونے دیں، مجھے کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور اسکول میں اتنا تو پڑھ کر آیا ہوں۔ اسکول میں ٹیچرز اور گھر میں آپ مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ اب چلو اٹھو اور کھانا کھا لو۔ ببلو ہاتھ منہ دھو کر جب کھانے کی میز پر آتا ہے تو کھانا دیکھ کر زور سے چلانے لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں کوئی بھی سبزی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا بیٹا تو چکن بھی بنائی ہے، وہ کھا لو۔ نہیں، مجھے ایسی چکن نہیں پسند، مجھے برگر کھانا ہے یا پھر پیزا۔ بیٹا کل ہی تو کھایا تھا، روز روز ایسی چیزیں کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹے کی بات چیت ببلو کے پاپا بہت غور سے سن رہے تھے۔ بس بیٹا جو پکا ہے وہی کھاؤ اور ماما کی بات مانو، ہر بات پہ آپ کی ضد نہیں مانی جائے گی۔ پاپا آپ بھی ماما کا ساتھ دیتے ہو، میں یہ سب نہیں کھاؤں گا۔ نوکروں کو بھی نکال دو جو مجھے برگر بنا کر نہیں دے سکتے۔ اب میں نہ اسکول جاؤں گا اور نہ ہی پڑھائی کروں گا۔ یہ کہہ کر ببلو غصے سے اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا سامنے سے اس کا دوست آ رہا تھا۔ ارے ببلو چلو آ جاؤ، ہم سب پارٹی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، میرے پاپا میری کوئی بات نہیں ٹالتے، جو میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے پاپا نے پارٹی کے لیے مجھے کتنے سارے پیسے دیے ہیں۔ ببلو کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا دوست اس پر ہنستے ہوئے چلا گیا۔ دوسری طرف گھر پر ماں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان تھی۔ اجی میں ببلو کے لیے بہت پریشان ہوں، وہ بہت بگڑ گیا ہے۔ کل اس کی ٹیچر کا بھی فون آیا تھا کہ یہ بالکل بات نہیں مانتا، بچوں سے بھی لڑتا ہے اور کلاس سے باہر نکل کر گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، اور پرسوں تو اس نے اپنی ٹیچر کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ہاں بیگم، آج اس کی حرکت نے مجھے بھی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ پرنسپل سے 2 بار بات ہو چکی ہے، پتہ نہیں ہمارا بیٹا ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ اتنے امیر ہو کر بھی ہم نے ہمیشہ رب کا شکر ادا کیا ہے، کبھی غرور نہیں کیا، اور ہماری تربیت بھی بہت اچھی ہے۔ پتہ نہیں یہ کن دوستوں کی سنگت میں پڑ گیا ہے۔ دونوں پریشانی میں بیٹھے ببلو کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور وہاں ببلو پارک میں اکیلا بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک بچہ دیکھا جو پھول بیچ رہا تھا۔ پھول لے لو، پھول لے لو، بہت خوشبودار اعلیٰ نسل کے پھول لے لو، میرے پاس ہر طرح کے پھولوں کے بیج بھی ہیں، پھول لے لو۔ چپ کر جاؤ اور نکلو یہاں سے، تم جیسے لوگوں کے لیے یہ پارک نہیں بنا، ہم جیسے امیروں کے لیے بنا ہے، تم جیسے غریبوں کا یہاں کوئی کام نہیں، نکلو یہاں سے۔ وہ بچہ روتا ہوا چلا گیا۔ اب شام ہو گئی تھی۔ ببلو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ اللہ کے لیے میری مدد کرو، بڑی مہربانی ہوگی، میں بہت بھوکا ہوں۔ ہم تمہارے نوکر نہیں جو تمہیں کھانا دیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے فضول پیسے ہیں تم لوگوں کو دینے کے لیے۔ راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں تو وہ سزا دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس بس زیادہ نہ بولو، تم تو بھیک مانگنے والے ہو، میرے استاد بننے کی ضرورت نہیں، خود مانگ کر کھاتے ہو اور مجھے گیان دیتے ہو۔ تمہارے مقدر میں ہی مانگنا ہے، بھکاری کہیں گے۔ چلو اب دفع ہو جاؤ، میرا راستہ چھوڑو۔ خوش رہو بیٹا، اللہ کا سب کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہے، تمہیں بھی وہ سمجھا دے گا۔ ببلو فقیر سے لڑ کر بڑبڑاتے ہوئے گھر آ گیا۔ سامنے میز پر پیزا اور برگر پڑے تھے۔ ارے واہ، پیزا اور برگر، مزہ آ گیا۔ اگر آپ پہلے مان جاتی تو مجھے اتنے گھنٹے بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ آئندہ فوراً میری بات مان لینا۔ ماں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رات کو ببلو پاپا کے پاس آیا اور کہا، پاپا، میرے دوستوں کے پاپا انہیں پارٹی کے لیے بہت سارے پیسے دیتے ہیں، وہ لوگ مزے کرتے ہیں، میں ان سے زیادہ امیر ہوں، مجھے برا لگتا ہے جب وہ میرا مذاق بناتے ہیں، میرا اسٹینڈرڈ ان سے اونچا ہے، اس لیے مجھے روز زیادہ ساری پاکٹ منی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہو ببلو، یہ غلط بات ہے،
अच्छे बच्चे कभी भी बुरी आदतें नहीं अपनाते और ना कभी बुरे दोस्तों की सोहबत इख्तियार करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरा आखिरी फैसला है और वैसे भी ये सब मेरा ही तो है। आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। पापा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते तो बबलू गुस्से में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह बबलू तैयार होकर गुस्से में बिना नाश्ता किए घर से स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। माँ बहुत परेशान थी। सोचा कि उसके आने से पहले उसके लिए उसकी पसंदीदा गेम ले आऊं ताकि वो घर आकर खुश हो जाए। सुने, आप ऑफिस जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेते जाएं। रास्ते में मुझे मॉल पर उतार दीजिएगा, मैंने बबलू के लिए गेम लेनी है। अरे तुम भी ना, तुम्हारी वजह से वो और भी ज्यादा जिद्दी हो गया है। ऐसा मत करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चलते हैं। मुझे घर का और भी सामान लेना है, मैं वो भी साथ ही ले लूंगी। और इस तरह वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और नौकर को बबलू को स्कूल से लाने का कह देते हैं। बबलू जब घर आता है तो किसी को घर में ना पाकर नौकर से पूछता है कि मामा और बाबा कहाँ गए हैं। बबलू बाबा वो जरूरी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजती है तो नौकर फोन उठाता है। ये जुनैद साहब का नंबर है? जी, मगर साहब घर पर नहीं है, मैं उनका मुलाजिम बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है, जुनैद साहब और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही वफात पा गए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो अच्छे भले घर से निकले थे। क्या हुआ? किसका फोन था? बबलू बाबा गजब हो गया, साहब और बेगम साहब का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों हमें छोड़कर चले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और बबलू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सबने उसे संभाला। अगले दिन उसके चचा और चची घर आ गए। माँ बाप के जाने के बाद सारी जायदाद बबलू के नाम हो गई और उसकी देखभाल उसके चचा चची पर आ गई। देखो नासिर, ये तुम्हारा सरदर्द है। मैं अपने बच्चों के अलावा किसी की देखभाल नहीं करूंगी। और वैसे भी बबलू की मामा ने मुझे हमेशा गलत समझा है। देखो बेगम, तुम समझ नहीं रही। अभी बबलू के 18 साल के होने में वक्त है। उस वक्त तक हम उसके गार्डियन बनकर उसकी जायदाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि प्यार करो, बस घर के किसी कोने में पड़े रहने देना। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर एक बात याद रखो, मुझसे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और इस तरह वो बबलू पर जुल्म करने लगते हैं। नाश्ते के वक्त बबलू कहता है, मैं ये नाश्ता नहीं करता, मुझे ब्रेड सैंडविच चाहिए जैसे बंटी खा रहा है। बदतमीज, मेरे बेटे के खाने पे नजर रखता है। शर्म नहीं आती? जो मिला है वही खा, वरना तू वैसे ही भूखा रहेगा। चच्ची जान, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? बंटी भी तो अपनी पसंद का नाश्ता कर रहा है। चची को गुस्सा आता है और वो बबलू को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर नीचे बिठा देती है और कहती है, चुप करके यहीं बैठा रहे, अब तू भूखा रहेगा जब तक तो खुद गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी नहीं मांगता और यही खाना नहीं खाता। बबलू पूरा दिन रोता रहता है और अपने मामा बाबा को और उनके प्यार को याद करता है और फिर चची से माफी मांगता है। चच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। आ गया ना लाइन पर। चल अब जा, फ्रिज में जो कुछ भी पड़ा है गरम करके खा ले। बबलू रोते हुए सुबह का बचा खाना खाकर सो जाता है। देखते ही देखते बबलू के सारे खिलौने और कपड़े चची अपने बच्चों को दे देती है। तमाम नौकर जिन पर बबलू चिल्लाता था वो सब उसका काम करने से इनकार कर देते हैं। एक दिन जब बबलू स्कूल के लिए निकल रहा था तो चची बोली, अरे तूने स्कूल जाके क्या करना है, जबकि सारी जिंदगी तूने हमारा नौकर बन के ही तो रहना है। चल जा, कपड़े बदल और बाजार से सामान लेके आ। प्लीज चच्ची, मुझे स्कूल जाने दो, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तभी पास खड़े उसके चचा कहते हैं, बस करो, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हारी चची ठीक कह रही है, उसके साथ काम में हाथ बटाया करो। और इस तरह चची बबलू का बैग खींचकर स्टोर रूम में रखकर ताला लगा देती है और बबलू को बाजार से सामान लेने भेज देती है। बबलू रोता हुआ बाहर जाता है तो रास्ते में वही फकीर मिलता है। क्या हुआ बेटा, आज तो तुम्हारी हालत मेरे जैसी लग रही है। उड़ा लो मजाक, तुम लोग और करते ही क्या हो?
देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो तो लग ही रहा है। मैंने कहा था ना, अल्लाह गरूर और तकब्बुर की सजा जरूर देता है। ये सुनकर बबलू वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे वही फूलों वाला बच्चा मिलता है जो कि खाना खा रहा था। वो बबलू को देखकर कहता है, आओ साहब, आप भी खाना खाओ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे खाने का पूछ रहे हो। कोई बात नहीं साहब, अब आपकी हालत भी ठीक नहीं लग रही, आप भी मेरे साथ खाना खा लो और अगर दिल करे तो फूल भी ले लेना। हाँ, मैं कल से बहुत भूखा हूँ, मेरे पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। अगले दिन चची गुस्से में आकर बबलू को घर से बाहर निकाल देती है। वो भूखा प्यासा घूम रहा था तो वो फकीर के पास आया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। बेटा, मेहनत किए बगैर तो कुछ नहीं मिलता, अब तो तुम भी मेरी तरह भीख मांगो। बबलू रोते हुए भीख मांगता है, प्लीज कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कुछ लोग तरस खाकर उसे पैसे दे देते हैं। फकीर उसमें और पैसे मिलाकर कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो इस पर गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका शुक्र अदा करो। अब जाओ और कुछ खा लो, और अगर चाहो तो रोज मुझसे कुछ पैसे लेकर खाना खा लेना। बबलू बहुत शर्मिंदा होता है कि मैंने जिनको धुतकारा उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरे दोस्त, यार, रिश्तेदार सबने मुझे सताया, मुझ पर जुल्म किए। या अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे काश एक मौका मिले तो मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूँ। बबलू अभी रो ही रहा था कि उसके पास एक आदमी भागता हुआ आया और एक पर्स फेंककर भाग गया। पीछे से पुलिस आई और उसे चोर समझकर मारने लगी तो वो रो रो कर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ये पैसे मेरे नहीं हैं, प्लीज मुझे मत मारो मुझे। अचानक उसे आवाज आती है, बबलू उठ जाओ, और कब तक सोओगे? स्कूल नहीं जाना क्या? उठ जाओ मेरे चंदा। बबलू फौरन बिलबिलाकर उठता है और माँ को सामने देखकर उन्हें गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मामा मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या हुआ बबलू? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। चलो अब फौरन तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे चचा और चची आए हैं और बंटी कब से तुम्हारा पूछ रहा है। बबलू तैयार होकर नीचे आता है, अपने पापा के गले लगता है और कहता है, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। बबलू के वालिदैन बबलू के इस रवैये को समझ नहीं पा रहे थे। अरे बबलू तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत प्यारा भी। आखिर भतीजा किसका है? बबलू को अपने चचा और चची से नफरत हो रही थी तो बबलू ने कहा, मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, बिल्कुल अपने पापा की तरह, और अपनी मामा की हर बात मानूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा और अपने अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करूंगा। ये सब बातें करके वो स्कूल के लिए निकलता है। माँ बाप बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। रास्ते में जाते हुए वही फकीर बबलू को मिला। फकीर अंकल, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज से आप हमारे घर पर काम करेंगे, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं। लगता है अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे ही दी। आगे जाकर फूल वाले से बबलू ने कहा, मेरे साथ चलो दोस्त, आज के बाद तो मेरे साथ स्कूल जाओगे और तालीम हासिल करके बड़े इंसान बनोगे। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। बबलू ये काम करके बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करके वो स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। Subscribe.